Understand. Good evening, friends. Good evening, madam. Today we have a special guest speaker, Dr. Farzana Shahla. Dr. Farzana Shahla is an awardee of postdoctoral fellowship from Indian Council of Social Science Research, that is ICSSR, and junior research fellowship from University Grants Commission, that is UGC. She completed her doctoral and postdoctoral research at Usmania University, Hyderabad. She extensively worked on early childhood behavioral issues and metacognition and published almost all 30 research articles in national and international journals and chapters in books. She also presented a number of research papers at national level, international seminars and conferences. Being uh, uh, she she actually received in the earliest stage. She received a Young Scientist Presentation Award from Indian Science Congress Association in 2013 and secured journal rank 10th position in Teaching Professionals Olympiad conducted by the Hindu newspaper and CENTA. CENTA means Center for Teacher Accreditation. तो जो टीचर्स को जो जो टीचिंग में जो अच्छा सवाल पूछ लेके टीचिंग करते हैं ना, वो लोगों को सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन रिकॉग्नाइज करके वो अवार्ड देते हैं. और शी प्रेजेंटेड लाइव लेसन्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ट्रांसमिटेड थ्रू TSAT फॉर diploma in elementary education and bachelor of education and language pundits also, and some lessons are from in-service teachers also. It is very useful for in-service teachers. She has more than 10 years of experience in teaching and research. She is also the author of 5 books. She published 5 books. One of the author for really it's a great. Presently, she along with her team of teachers is engaged in providing online tuition and coaching to school and college students. At various levels, she is doing a lot of things for community, especially women empowerment. How to improve communication skills. Daily, every Monday and Saturday, madam is taking 2 classes online for women, only women. That is the women empowerment के लिए जो मैडम क्लासेस ले रहे हैं ना, how to speak confidently, how to speak in the group, how to present the things. So she doing lot of things for women. Really heads up to you, madam. Fortunately, Dr. Farzana Shahla madam is with us, our trainees, and we are very lucky enough, madam. Thank you very much for accepting my plea and joining with our session. So today's session is the constitutional vision of independent India. That is second chapter of paper 1. So madam is basically ECCE, even though, but she is good at philosophy. So today topic is constitutional vision. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए के वक्त जो विजन अंबेडकर का जो जो बड़ा बड़ा आदमी के लोगों का लीडर्स का वो विजन क्या है after getting of independence of 15th August, how we are going to see our constitution. So इसके बारे में आज हमारा मैडम सेशन लेते जी. प्लीज आप लोग अच्छा तरह से सुन लो, लिख लो, और कुछ मैडम इंटरेक्ट होने के वक्त आप लोग भी आंसर दे. थैंक यू वेरी मच मैडम. सेशन इज ओवर टू यू मैम. या फरजाना जी. या फरजाना मैडम. यस, नाउ यू कैन. आपका ऑडियो नहीं आ रहा है अम्मा. Thank you very much, sir. Yeah. It was very nice to speak about me. I'm trying my best. कोशिश करती हूँ कि कुछ दूसरों को फायदा हो जाए. Yeah. Dear students. Yeah. Is it okay now, sir? Yes, ma'am. Please. So, dear students. थोड़ा पीछे मैडम, थोड़ा पीछे. क्यों तो yeah, it's fine. Yeah. So, can I speak to the student for 2 minutes, sir? Yeah, please. Of course, whatever you can, madam. Thank you, sir. तो यहाँ पे जितने भी students हैं, अभी तक 49 मैडम, including us. Yeah, आते मैडम. Yeah, I'll keep my first slide, sir. Yeah, please, you can.
मैं विजिबल सर? पक्का मैडम 100% आपके जैसा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन Actually, I have taken this directive principles also, but I don't know whether time will permit or not. या So इंशाल्लाह देखेंगे मैडम we'll see, sir. Otherwise, in the next class, I'll cover directive principles. या Okay, sir. Dr. Jani Reddy madam, actually our principal name is Dr. Jani Reddy. We continue, sir. Yeah, please ma'am. Thank you. So, dear students, I would like to ask you few questions and then we'll start. पहला, I'll be bilingual. मैं उर्दू भी बोलूँगी, मैं इंग्लिश भी बोलूँगी ताकि आप सब लोगों को समझ में आ सके. सबसे पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आप क्या समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से? I would be happy if I get one or two answers. आप लोग में से कोई भी जवाब दीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन सुनते ही आपके ध्यान में क्या आता है? जी मैम. मैम, दस्तूर एक किताब है मैम, एक किताबी शक्ल है जिसमें हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के हुकूक और इनके राइट्स को लिखा गया है मैम, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और पूरी आज़ादी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं. Very good. मैम अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम मैम. Yeah, Rahmat bhai. Ma'am, these are the principles of law and order which works in India. These are the principles. Whole total, what do you say? In other words, these are the rules of law and order. Yeah, definitely. It is a shaped of. सही है. रूल्स हैं. एक ऐसी समझिए एक किताब है, एक ऐसी लिखी हुई चीज है जो आपको आपके जो कुछ भी चलाने में इसको एक शेप देती है और चलाने में मदद करती है. फाइन. जब आप अच्छा, अगर आप एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, आप टीचर एजुकेटर हैं, आप एक स्कूल खोलना चाहे तो आपके क्या क्या विजन रहेंगे? आप क्या क्या चाहेंगे कि उस स्कूल में क्या क्या हो? चलो हम बात करेंगे प्राइमरी स्कूल की. जी मैम, सबसे पहले तो मैम परमिशन मैम हुकूमत से, और उसके बाद एक इमारत होगी मैम. वो छोड़ दीजिए, वो हिस्सा छोड़ दीजिए. ठीक है मैम. मैम एक लैंड होगा मैम, जमीन, फिर उसके ऊपर इमारत. I'll give you the point. ऐसी चीज बताइए जो आप अपने स्कूल के जरिए आप हासिल करना चाहते हैं. जमीन छोड़ दीजिए, रिकॉग्निशन छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की पूरी चीजें, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए. आपका क्या विजन रहेगा? आप क्या सोचेंगे? क्या मिशन रहेगा आपका? अच्छे फ्यूचर में एक To जिम्मेदार educate the society, ma'am. That's what. To educate the society, to give better education to the students, right? Yes. That's it. यही है ना अपना पूरा Yes, मकसद. यही रहेगा एक स्कूल खोलने के बाद. आप ये मत बोलिए कि आप उसको स्कूल से कमाएंगे या गवर्नमेंट को ये करना होगा या रिकॉग्निशन लेना होगा. दोज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स. लेकिन बेसिकली हमारा विजन ये रहेगा कि हम उस स्कूल के जरिए बच्चों को पढ़ाएं, उनको एजुकेट करें, कुछ उनकी लाइफ उनको बदल सके हम उनके एजुकेशन के थ्रू, राइट? तो ये विजन है. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ठीक है, तो उसका भी कुछ विजन था, ठीक है ना? तो आप गेस कर सकते हैं. कैन यू गेस व्हाट कुड बी द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द इंडिया? क्योंकि इंडिया जो है वो आजाद हो गया था. इट वाज इंडिपेंडेंट दैट टाइम व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड. तो क्या विजन रहा होगा? हम अपने अपने हुकूक को इस्तेमाल करें वो और आजादी से जिंदगी गुजारें. I would like to say about constitution that the ambition of a constitution, it maybe I'm not saying exactly it, because you're just saying me for my opinion, so that's why I'm saying constitution ambition. I think it should be I think all the citizens having the right of freedom. They want to give by the constitution rights of citizenships. Right of what do you say? I'm speechless, but I can speak. That's it. But no, you have given the best point. Actually किसी और ने भी दिया same point. उन्होंने भी कहा कि equality, equal
no consideration, equal opportunities, equality for all. Now we will move forward. तो यानी बेसिक चीजें हम लोगों को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पता है. Let us move to the next slide. Okay, can you see this slide? Yeah, madam. Yes, ma'am. We find what are the things present in this slide? There are student diaries there. Diaries, yeah. So like diaries में जैसे पूरे रूल्स लिखे रहते हैं स्कूल के, बच्चे को निकाल देना है, पेरेंट्स को क्या करना है, कब छुट्टी लेनी है, कब नहीं लेनी है ना. उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक डायरी है जो हमारे इंडिया को चलाता है, हमारे पूरे कंट्री को चलाता है, पूरे आम जनता से लेके, आम पब्लिक से लेके, जनरल जो सिटीजन हैं हम लोग, हमसे लेके गवर्नमेंट तक के पूरे बॉडीज जो होते हैं वो कैसे चलेंगे, किसको क्या हक मिलना चाहिए, किसकी क्या ड्यूटी है. The rights and duties are all included in Constitution. Got my point, no? Yeah. Yeah, sure. This is our preamble of Constitution. I hope you all know. This is we, the people of India, resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic. These terms, you know. Sovereign मतलब अपना ही है हमारा, दूसरे आके हमको कंट्रोल नहीं कर सकते. Socialist, you know, we believe in social justice, social values. Secular is about religion. All religions can survive or take their shape in this country. Democratic, यहाँ पे हम लोग वोट करते हैं और अपना लीडर खुद चुनते हैं. And it's republic, it's of the people. ठीक है. So this is the preamble. Now we'll basically, because we are talking about education and constitutional vision about education is our main purpose here, for which we have gathered here. आज हम इसीलिए जमा हुए कि हम देखेंगे कि हमारे constitution में, पूरा constitution हम नहीं पढ़ सकते एक दिन में क्योंकि बहुत ही लंबा है, कई पेजेस बैठ के पढ़ना पड़ता. It's not possible. लेकिन उसमें एजुकेशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हमारे जो हमारे लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन थे, और जो हेड थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट. ठीक है, इन लोगों के सुपरविजन में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था. तो इसमें कुछ एजुकेशनल प्रोविजन रखे गए थे ये सोच के कि आगे हमारी सोसाइटी को, हमारे जो सिटीजन हैं उनको इसकी जरूरत पड़ेगी. सो सबसे पहला है राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. आई हैव गिवन यू द एजुकेशनल प्रोविजन एंड देन द आर्टिकल वेयर यू विल फाइंड ऑल दिस. ठीक है ना. तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं. राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आपको पता है कि सबको जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना है. खासतौर पे जो है छोटे बच्चों को, हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रोविजन है, प्राइमरी एजुकेशन का प्रोविजन है. तो सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना है 14 साल की उम्र तक. ठीक है ना. जी मैम. आर यू देयर? सुन रहे सब लोग? हाँ मैम, सुन रहा हूँ. बहुत सारी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, यहाँ पे सारी पुरानी चीजें हैं, आपने सुनी हुई होगी. ठीक है ना, कहीं ना कहीं सुनी होगी आपने, लेकिन आपके सिलेबस में ये अभी है, तो आपको एग्जाम में भी लिखना रहेगा. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स कि राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारे आर्टिकल 41 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, दस्तूर के. Then right to education, which is in 21A. ठीक है. And education for women, right to education for all up to 14 years of age. एक है right to education, दूसरा है right of free and compulsory education. तो यहाँ पे आप जो है फ्री दे रहे हैं एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन मतलब जो भी 14 साल तक का बच्चा रहेगा उसको एजुकेशन कंपलसरी मिलेगी और फ्री मिलेगी. Then education for women is included in 15(1) and 3. इसके बारे में डिटेल आगे मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ अभी यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है आर्टिकल. Then promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker section. तो हमारे कंट्री के हिसाब से
बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे वीकर सेक्शंस भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं। हमारे पास औरतों में मर्दों में फ़र्क ज़्यादा है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। हमारे पास बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है ना, कई रिलीजन है जिसकी वजह से हमको अलग अलग प्रोविजंस बनाने पड़ते उन लोगों के लिए, बिकॉज दे हैव दे उनका अपना अपना तरीका है रिलीजियस फॉर्मेलिटीज पूरे करने का। तो ये रिलीजियस वीकर सेक्शंस के लिए और दूसरे ST/SC वगैरह के लिए प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी उनके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है 46 आर्टिकल 46 में। देन वी हैव रिलीजियस एजुकेशन, जो अभी मैं बोल रही थी, इट इज देयर इन 25, 28 आर्टिकल। 28 आर्टिकल में भी 3 शेड्यूल है, 1, 2, 3। आप चारों जगह आप ये रिलीजियस एजुकेशन के बारे में मालूम देखेंगे। देन वी हैव एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। सो आपको पता है इंडिया में माइनॉरिटीज हैं, हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ऑल आर माइनॉरिटीज। तो उनके एजुकेशन की भी ज़रूरत है, उनके इंटरेस्ट को, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये है आर्टिकल 29 में। देन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर हम मुस्लिम्स का ले तो मदरसा एस्टैब्लिश करना चाहते, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते, ताकि कुछ रिलीजियस एजुकेशन भी हो सके और जो रेगुलर एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही वो भी मिल सके बच्चों को। तो ये कहाँ पे है? ये 30 आर्टिकल नंबर 30 में है। देन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। आप लोगों को पता होगा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, सही है ना? जी मैम। जी मैम। जी 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 मैम। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे अभी चेंजेस होने वाले हैं और ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं हम मदर टंग में एजुकेशन होने की। तो ये चीज़ हमारे खुद कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है कि प्राइमरी स्टेज में हमको मदर टंग में ही पढ़ाना है बच्चों को। इससे क्या होता है? फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, बेस विल बी स्ट्रांग वहाँ से, क्योंकि आप देखते हैं ना सारे टॉपिक्स, सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही दोहराए हुए रहते हैं, कुछ बढ़ा के आगे। हर स्टेज में हमारे पास कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। तो इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ये है हमारे 350A में। देन हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। हमको इसको, ठीक है, ये अलग बात है कि हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन खुद अगर हिंदी को हम देखें तो 18 रूप है हिंदी के। देयर आर 18 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदी अवेलेबल एंड स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया। तो हिंदी को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स नेशनल लैंग्वेज। जितने भी आपको नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट दिखेंगे, आप देखिए अगर आप कभी जाते हैं, विजिट करते हैं, तो हिंदी के लिए प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इंस्टीट्यूट भी। तो ये चीज़ हिंदी को प्रमोट करने की बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 351 आर्टिकल में है। देन एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है हमारे पास अगर हम लद्दाख को छोड़ दें, हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थे और अब तो 8 हो गए। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके अंदर भी सही एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट को उठाया गया है 239 आर्टिकल नंबर 239 में। देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी बोलता है कि सारे लोगों को एजुकेशन दिलाना है, खासतौर पे पेरेंट्स को बच्चों के एजुकेशन के लिए कोशिश करनी है। एंड दिस इज अवेलेबल इन 51A। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आई वुड बी हैप्पी अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा आवाजें सुनाई दिए तो। हाँ मैम। लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं तो स्लाइड्स पे देख रही हूँ। आई डोंट नो आप लोग फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। डेफिनेटली वी विल गिव रिस्पांस मैम इंशाल्लाह। या इट वुड बी बेटर, क्योंकि जब इंटरेक्टिव क्लास कैसे? इंशाल्लाह मैम। मजेदार मुझे पता है, इसको ज्यादा मजेदार नहीं बना सकते। ये तो है नहीं मैम, हम लोग नोट भी कर रहे हैं ना मैम, आर्टिकल्स सब। तो अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तब मुझे खुशी हुई। And these are very durafshas, madam. All are durafshas. Yeah, they are very intellectual, madam. Only thing is lack of awareness. That's it, ma'am. No, sir. Yeah, that's what I said. No, it's all everyone knows. ये सिंपल चीज है, मालूम है, लेकिन
अब क्योंकि सिलेबस में आ जाता है तो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट, सो दैट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर. Nice, ma'am. So we will go one by one. Free and compulsory education provision. Education provision of early childhood care and education to children below the age of 6 years. तो हमारे पास बाज़ाब्ता अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोल के एक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है समझिए, जहाँ पे हम छोटे बच्चों को, आपको पता होगा आंगनवाड़ी, बालवाड़ी वगैरह आपने सुना होगा, तो वहाँ भी इसका पूरा प्रोविजन है. और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये पूरे आपको प्ले ग्रुप चलाते हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन क्लासेस जो चलती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये पूरा इसी पे फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे. ये अलग बात है कि हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में अलग चीज़ है और प्राइवेट में अलग है, लेकिन उनका एक ही मकसद है कि 6 साल के नीचे के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना. सो आर्टिकल 45, एज आई सेड टोल्ड यू, the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. ये अपना असल मकसद है. This is our main criteria to provide free and compulsory education so that each and every child below the age of 6 years should complete minimum, they should get proper care and education at this level. तो एक बात और बता दूं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारे जो दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन ब्रेन का, वो एक्चुअली बहुत कम उम्र में अच्छे से हो जाता है. तो अगर हम ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिए तो बच्चों का दिमागी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो नहीं हो पाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट एवरी चाइल्ड शुड बी एनरोल्ड in this early childhood care and education system, and they will be provided free and compulsory education. So we should encourage, हमको जो है आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजने के लिए encourage करना चाहिए, ठीक है ना. Although बहुत सारे जो ठीक ठाक फैमिली के हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, they are sending their kids to private schools. अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A. The state shall provide free and compulsory education to all children of age 6 to 14 years in such a manner as state may by law determine. ये आपके 86 अमेंडमेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो तो एक फॉर्म में आ गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहुत सारी नई चीज़ें आती गई और उसको ऐड करना ज़रूरी हो गया. तो जैसे किसी चीज़ को, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या टूट फूट जाती है तो हम उसको ठीक करते हैं. उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उसको अमेंड किया गया, और हर जितनी बार अमेंड किया गया उतनी बार एक एक्ट पास हुआ, अमेंडमेंट एक्ट कहलाता वो. तो हमारा 1 से शुरू हुआ, और जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में, उसमें ये चीज़ इंक्लूड की गई, ठीक है ना. सो नेक्स्ट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. इसमें जो है ना प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन हैज अ फंडामेंटल, इट हैज बिकम अ लीगल राइट. तो अभी जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है लीगली ज़रूरी हो गया है, उसको कोर्ट की तरफ से भी जो है कंपलसरी कर दिया गया है. तो ये 93rd अमेंडमेंट में हुआ था. नाउ एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों का पढ़ना लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मर्दों का. सो बिकॉज वी हैव मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो चल जाता है. इफ वुमेन आर एट होम, उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा तो चल रहा. लेकिन क्या होता है, अगर औरतें पढ़ी हुई नहीं है तो अपने बच्चों को भी नहीं सही से देख सकती हैं. तो इसलिए जो है आर्टिकल 15 में मैंने यहाँ पे हिंदी में भी डाला हुआ है कि किसी भी धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ये आर्टिकल 15(1) में है. लेकिन आर्टिकल 15 जो स्पेसिफिक 15 है, वो ये कहता है कि किसी को भी सेक्स, रिलीजन, रेस या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप उन लोगों में डिफरेंसेस नहीं कर सकते. मैम ये जन्म स्थान के आधार पर क्या है? जन्म स्थान के आधार, जन्म स्थान मतलब आप जहाँ पे बॉर्न हुए, आपका प्लेस ऑफ बर्थ. अच्छा जी. धर्म, रिलीजन, जाति इज द कास्ट. हाँ मैम, मजहब, जात, नस्ल या जिन्स, पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाजी पैदाइश की बुनियाद पे आप उनको
आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इम्तियाजी आप सलूक डिफरेंस नहीं कर सकते जी, आप गलत सलूक नहीं कर सकते, आप कोई भी उनके राइट्स नहीं छीन सकते। और आर्टिकल 15(3) में ये खास तौर पे औरतों के बारे में है, और जो आर्टिकल 15(1) है, ये जैसे जैसे अमेंडमेंट हुआ वैसे वैसे, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल सब बन गए थे, एक से लेके जहाँ तक आखिरी आर्टिकल तक पूरा इंक्लूड किया जा सकता था, तो जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुए वहाँ वहाँ नंबर डाल दिया गया या फिर लेटर्स डाल दिए गए, जैसे ए है, बी है, के सी है, या फिर 1 2 3 4 डाल दिया गया, ठीक है ना। तो जो 15(1) है, इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पे औरतों के एजुकेशन पे खास ध्यान दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा विजन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, the people who were behind the formation of constitution, they tried their best कि कोई भी एरिया, कोई भी अपना जो हर तरह के सिटीजन हो, हर तरह का जो ग्रुप है, कैटेगरी ऑफ पीपल है, दे कैन बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम। उनको कहीं ना कहीं से एजुकेट किया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके, उनके लिए रास्ते खोले जा सके, चाहे वो एजुकेशन के हो या एम्प्लॉयमेंट के हो। Then we have promotion of education and economic interest of SC, ST and other weaker sections. ठीक है, ये है 46th आर्टिकल में। तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ना सिर्फ उनको प्रमोट करना है, यानी आपको उनको बोलना भी है कि आप करो, ठीक है, उनको याद दिलाना है, उनको समझाना है, उनके लिए कोशिश करनी है। एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। और ये खास बात ये है कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से भी है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बोलती हूँ। Then we have provision for religious education. This is enshrined in Constitution in Article 25. So आप you can propagate your religion. आप हिंदू हो, आप हिंदुइज्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। कोई भी चीज, नेगेटिव चीज फैलाना बुरा है, लेकिन आप अगर अच्छी चीजें बता रहे हैं तो यू आर अलाउड from the constitution. So article 25(1) जो है, it guarantees all the citizens a right of freedom and a right of profess, practice and propagate religion. तो आप न सिर्फ आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप हिंदू हैं आप पूजा कर सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं आप प्रे कर सकते हैं, और आप अपने पसंद की चीजें कर भी सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया तो किसी ने आपका जो है रिलीजन ही अडॉप्ट कर लिया। आपकी जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो मजहबी आजादी का हक है, आप अच्छी चीजें बता सकते हैं, किसी को पसंद आएगा तो वो भी अडॉप्ट करेंगे, बट वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी बुराई नहीं होनी चाहिए वो। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रोपागेट भी कर सकते हैं। देन आर्टिकल 28 जो है, ये आपको फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। आप जो है फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप वर्शिप भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आप हर तरह का रिलीजियस जो आपको फ्रीडम है वो प्रोवाइड कर रहा है। बट एक्सक्यूज मी मैम, ये स्काई ब्लू प्रिंट का जो है ना, वो कौन सा रिलेशन का है? ये मुझे फोटो मिल गई थी तो मैंने डाल दिया। नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, तो मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं करूंगी इंशाल्लाह इसको काफी एलैबोरेट करके आपको प्रेजेंट करूंगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये अपने इंडिया में है। मैम पारसी या जैन मत का हो सकता है मैम जी। अच्छा, ओके, अगर हो सका तो एक दो जब आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा तो मैं एक बार गूगल खोल के चेक करूंगी। ठीक है मैम। ठीक है ना। वैसे बहुत, क्योंकि अपने पास इंडिया में तो 6 रिलीजन काफी उसमें है, लेकिन आपको पता होगा कि ज़ोरो एस्ट्रोनिज्म एक रिलीजन है जो इंडिया में है। खुद जैनिज्म के हाँ है, तो लेकिन बहुत कम लोग हैं। जो पारसी लोग होते हैं ना, वो लोग भी बहुत कम हैं। तो उन लोगों के सिंबल्स भी कभी गौर नहीं करे हम। एक्चुअली मैं भी यहाँ मैंने, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप अट्रैक्ट होते इसलिए मैंने लगा दिया, बट आई डिडंट एक्सप्लोर। डेफिनेटली आई विल फाइंड आउट, अगर हो सका तो अभी बता दूंगी। जी ओके मैम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप एक चीज रेज करें, हमको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 28 आपको ये फ्रीडम दे रहा है। Then we have protection of interest of minorities.
आर्टिकल 29 इट रिलेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पे ये रिलीजियस फ्रीडम के से ही जुड़ा जुड़ा है, समझिए। यहाँ पे जैसे इंडिया में माइनॉरिटीज की हम खास बात कर रहे हैं, तो जैसे क्रिश्चियनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या जैनिज्म, बुद्धिज्म है, ये माइनॉरिटीज कहलाते हैं। और हिंदुइज्म जो है आपको क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है हिंदुइज्म की है, तो आप चाहें तो आपका जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ज़रूरत के लिए आपको यूज़ हुआ है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं यहाँ पे रहने में, वो सारी चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट, मतलब आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी कॉन्स्टिट्यूशन ले रहा है। यानी जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी कोर्ट रहेगा, वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 29 में पहले ही लिख दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। So any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. तो आपके जो भी हैं, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, आपके लिखने का तरीका हो, जैसे उर्दू है, अरबी है, तो आप राइट साइड से लिखते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, तो हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं, है ना। तो हमारा स्क्रिप्ट भी अलग है। तो कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, आप उसको प्रिजर्व करना है आपको, आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सता रहे हैं, आपको कोई परेशान कर रहे हैं, तो देयर इज अ provision in our constitution to protect the right interest of the minorities also. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. Now, I'm just giving one example. You got a fellowship from some institution. अब क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हैं, आपको आपका वो फेलोशिप आपका छीन लिया जाए कि नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं पढ़ सकते, तो क्या होगा, ये आपके राइट्स को छीन लेने जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे, और या फिर अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां आप पढ़ना चाह रहे हो एंड यू हैव दैट मेरिट, ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो है सब रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो ये आपके राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। इन दैट केस ये आपको आपके इस राइट को प्रोटेक्ट कर रहा, इस जो इंटरेस्ट है आपका, ये जो आपकी चीज है उसको प्रोटेक्ट करने में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है आपको मदद करेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने बताया ना, आप मदरसा खोल सकते हैं, आप चर्च के स्कूल्स खोल सकते हैं, आप कहीं भी जो मकतब होते हैं, कहीं भी वी कैन टेक लाइक गुरुकुल खोल सकते हैं। लेकिन गुरुकुल तो खैर मेजॉरिटी लोगों की हो गई, लेकिन माइनॉरिटीज की बात यहाँ पे हो रही। अगर कोई मठ खोलना चाह रहे, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, कोई अपना मॉन्स्ट्री खोलना चाह रहे, तो इन दैट केस वो कर सकते हैं। मतलब मजहबी इदारे किसी भी तरह के आप खोल सकते हैं, लेकिन मजहबी मतलब ऐसा नहीं, आप मजहब नहीं सिखाना, आपको एजुकेशन देना है, लेकिन आप खोल सकते हैं, यू हैव दैट राइट्स, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, यानी आप खोल सकते हैं, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एजुकेशनल बोल रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ किसी रिलीजन को आप पढ़ा रहे हो। आप बीइंग अ माइनॉरिटी आप खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि आप यहाँ पे माइनॉरिटी हैं तो आपको वो हक नहीं है खोलने का। आप अगर हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास मेरिट है, आप कुछ आपके जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह की आपके पास है, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन वही हर चीज़ वहीं पे शुरू होती, वहीं पे ख़त्म होती कि कुछ नेगेटिव प्रोपागेंडा नहीं करना है, कोई नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं फैलानी है, और एकदम आप 100% जो है बिल्कुल किसी रिलीजन को छोड़ देना और किसी के पीछे पड़ जाना, वैसा नहीं कर सकते आप। किसी एक को लेके नहीं आप कर सकते। राइट्स है, ये राइट है, आपको मिसयूज नहीं करना है उसका। Then Article 30 relates to rights of minorities to establish, okay, this one over. So all minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish and administer educational institutions of their choice. और फिर आपको ग्रांट भी मिलेगा, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से है, प्रोविजन है, तो आप जो है अपने कर सकते हैं। Then instruction in mother tongue at the primary stage. Sorry, this is linguistic. ये 350A जो है ना,
ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को के लिए है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आप खोल सकते हैं, आप फैला सकते हैं। देन प्रमोशन ऑफ हिंदी, एक मिस हो गया शायद, ओके दिस वन 7, okay fine, this is promotion of Hindi. So Hindi is our national language. हिंदी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप इंग्लिश पढ़ते हैं, दूसरे उर्दू पढ़ते हैं। हिंदी की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बीइंग एन इंडियन, क्योंकि आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, आपको जितने भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, आपके नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, आपको हिंदी वहाँ ज़रूर नज़र आएगी। और हिंदी बहुत सारे लोग बोल भी लेते हैं, शायद आसान है इसलिए। जैसे कि मैं तेलुगु नहीं सीख सकी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हिंदी सीख गए, तो हो जाता है ये। तो हिंदी सीखना शायद आसान है। So according to Article 351, it's the special responsibility of the center to develop the national language, so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. तो इसका provision है Article 351 में। I think ma'am Hindi is more easy than Telugu. Yeah, definitely. Actually, this alphabet is same. Like I have learned to write and read. Yeah, ठीक है, लिख सकती हूँ, बोल सकती, पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब बोलने की बारी आती तो देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें क्या होता, बहुत सारे ऑब्वियसली इट्स अ न्यू लैंग्वेज, आप एक्सपोजर ही नहीं है आपको। तो हिंदी जो भी हो नेशनल लैंग्वेज है, तो इसकी जरूरत है। yes ma'am. Now, next is Article 29, education in union territories. So here you can find some of the union territories of India, और यहाँ पे पूरों को यूनियन टेरिटरीज में एजुकेशन का प्रोविजन जो है ये हमारे आर्टिकल 239 में प्रेजेंट है। So this means that every union territory has its own education department, and the responsibility of education in union territory has been under union or center government. एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे स्टेट में अलग से नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी का सिर्फ सेंटर में ही पूरी देखभाल होती है इसकी। They take care of the education in the union territory. Fundamental duties, so opportunity for education 51A में है ये। It shall be the duty of every citizen of India who is present, who is parent or guardian, to provide opportunities for education to his child, or the case may be what's between age of 6 and 14 years. जिसके पेरेंट्स अलाइव नहीं है, अगर गार्जियन देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। Sir, do we have time now? Still we have time? Yes, ma'am. 4:42. Okay. Okay, right. So this is educational administration. You know that we have Ministry of Education, that is MHRD. Now with this NEP 2020, it will change to Ministry of Education, but in the Constitution it was MHRD only. So we had 3 departments: Department of Secondary and Higher Education, Department of Elementary Education and Literacy, and Department of Women and Child Development. These 3 are included in MHRD, Ministry of Human Resource Development. तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है और लिटरेसी को भी देखना है, यानी हर आदमी, हर सिटीजन इंडिया का, उसको बेसिक जो है लिखना पढ़ना आना चाहिए, एटलीस्ट वो अपना नाम और एड्रेस लिखने के काबिल हो। देन डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जहाँ पे आपको 10th तक की, इंटर तक की पढ़ाई हो सके, और आप अगर हायर एजुकेशन और लेना चाह रहे हैं तो वो हो सके। एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे जो है औरतों की, उनके हेल्थ की, उनके न्यूट्रिशन की देखभाल करना, उनके एजुकेशन की देखभाल करना, उनके जो है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज को भी हैंडल करना इसी में आता है। तो फंक्शंस क्या क्या थे MHRD के या हैं? सो प्लानिंग, ये हर किस्म की जो है एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं। एक्चुअली दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ था कि ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, तो ये प्लान करेंगे एजुकेशनल चीज़ों को, कहाँ पे कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे किस लेवल की टीचर्स की ज़रूरत है, तो टीचर्स कैसे रहनी चाहिए, स्कूल्स कैसे खोलना है, क्या जो ना रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए स्कूल
अगर खोलना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन एजुकेशनल रिफॉर्म, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जो रिफॉर्म्स होते हैं, चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, एजुकेशनल रिफॉर्म को भी रिफॉर्म करते टाइम टाइम पे करते रहना भी इनकी जिम्मेदारी है। देन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई आप स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी MHRD की रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्शन देना, किस तरह के कोर्सेज कहाँ पे स्टार्ट करने हैं, कौन सी किस एरिया में क्या चाहिए, मतलब किसी भी तरह का डायरेक्शन देना है, बताना है कि क्या करना है अब नेक्स्ट, ये काम भी MHRD का है। देन कंट्रोल, MHRD क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे रूल्स हैं, जिसकी वजह से वो सबको, इदारों को कंट्रोल करके रखती है। देन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी की का एजुकेशन मिलना है, बराबरी की चीजें मिलना चाहिए। तो ये इसमें इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में आ रहा है कि हर एज ग्रुप के बच्चों को, हर लेवल के लोगों को मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। देन पायलट प्रोजेक्ट्स, जब भी कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो वो डायरेक्ट नहीं आ जाता, उसके लिए पहले एक कोशिश होती है और उसका पायलट किया जाता है, उसको छोटे लेवल पे उसको करके देखा जाता है कि कितना सक्सेसफुल है, और जब ठीक ठाक रहता है तब उसको पूरे कंट्री में यूज किया जाता है। तो वैसे प्रोजेक्ट्स को पायलट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो MHRD क्या डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं, और जब ठीक ठाक लगता है तो ऑल ओवर इंडिया जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। तो ये यूनियन टेरिटरी में भी, क्योंकि पता है कि यूनियन टेरिटरी सिर्फ सेंटर के, आपको पता है ना कि स्टेट और सेंटर दो और कॉन्करेंट, तीन तरह के लिस्ट है अपने पास। एक स्टेट का रहता है जहाँ पे स्टेट जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। कुछ चीजें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और कुछ चीजें होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में रहती हैं जो चेंज होती ही रहती है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरी जो है ये यूनियन लिस्ट में है, यूनियन यानी सेंट्रल लेवल पे ये काम होता है। देन क्लियरिंग हाउस, मरकजी ज़ेर इंतजामी इलाके, देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और जो भी कुछ चीज़ें हटाना है, कुछ चीज़ें रखना है, कुछ इम्प्लीमेंट करे फिर उसको ख़त्म करना है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे किस नई चीज़ों को लागू करना है, पुरानी चीज़ों को हटाना है, तो उस तरह के फंक्शंस भी ये डिपार्टमेंट्स के रहते हैं। Okay, sir. I have finished this constitutional vision. Shall I start directive principle today? मैम आप स्टार्ट कर दीजिए, मैडम शायद सर को कुछ काम हो सकता है। मैं टाइम देखना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो। Yes, madam. Yeah, exactly. Farzana, madam. Yeah. What you said is right, madam. Actually, why? Because we have to give priority for students, madam. Trainees, अभी तक जो मैडम फंडामेंटल रूल्स के बारे में और डिफरेंट आर्टिकल से एक्सप्लेन करना है, उसमें कुछ डाउट चेक है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैडम से डायरेक्ट। अदरवाइज थोड़ा बात करो, क्यों तो मैडम भी इतना लंबा टाइम भी अच्छा नहीं रहते, हम रिस्पेक्ट देना। नाज़रीन, आप 2 घंटे सुनते, 3 घंटे सुनते जी, आप बहुत होशियार है, आप एक्टिव है, इसीलिए आप पूछ रहे मैडम को। ओके मैम हमारा डाउट है मैम एक। यस प्लीज। पहले जायदाद का हक था ना मैम? मैम अभी भी है, है मैम, लेकिन मैम ऐसा जायदाद के हक को हतफ करके तालीम के हक को लाया गया बोल के सब पढ़े थे मैम हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि वो हमारे एजुकेशनल प्रोविजन में नहीं आया इसलिए मैंने इंक्लूड भी नहीं किया यहाँ पे। हाँ वो है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको खत्म करके ये नहीं आया है, सब अपनी अपनी जगह है। हाँ मैम, उसकी दिफा क्या है मैम का आर्टिकल? Trainees, I want to say one information. Please raise your hand. At a time, don't speak several people. Please, it is very awkward to us. Please, you can raise. Your option is there. Madam is 10 minutes with us. 10 more minutes. Don't worry. Please raise your hand. Yeah.
If you have any doubt, you can raise. Yes, please. Yes. Yeah, Supriya Samrin, please बोलिए अम्मा. अस्सलामुअलैकुम मैम. वालेकुम सलाम. చెప్పమ్మా. मैम अच्छा समझ में आया, लेकिन एक डाउट है मैम. जी. मैम जो स्कूल्स रीओपन करते खोलते ना, तो वो MHRD डिपार्टमेंट से रहता, लेकिन सडन स्कूल्स बंद भी हो जाते ना मैम. नहीं अम्मा, actually central will give some guidelines to states. This is in the same time this is called the bi-concurrent list antamu. Ante center ku state ku madhya relation. Center will give only some instruction to the states. States may follow or may not follow. If they follow, if it is okay. Otherwise, for example, what happened? For example, central government said don't open up to 21st of September बोल के एक लेटर दिया. बोले जो उन्हें वो रूल्स में लॉकडाउन पीरियड का रूल्स में 4 लॉकडाउन 4.0 में दिया. लेकिन हमारा स्टेट क्या करे, नो इतना टाइम तक वेट मत करना बोल के ऑलरेडी 27th ऑफ लास्ट मंथ वो ओपन करे. टीचर्स जाना फर्स्ट से every teacher should go and present something to teachers and meet the people regarding their syllabus, their gadgets, and provide TV shows to students like. But what happened? Nearly 2,650 teachers they got suffered with corona. So immediately Yes. government taking the decision. So no, we got to postpone to up to 21st. That's why 21st of this month again school will be reopened. So in that time also 50% of the teacher may join every school. So not 100%. There is a guidance given. But this is totally based on the MHRD only. MSY, Yes, right? sir. Yes, sir. You got the answer? Yes, sir. एक्चुअली जो भी रूल्स रहते हैं ना, देखिए वो बनते तो है MHRD की तरफ से ही, लेकिन जहाँ जहाँ जैसी जैसी सिचुएशन रहती है थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है. हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह जैसे हर स्टेट का एक सिचुएशन. मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको. जैसे विंटर ब्रेक है, ठीक है, सर्दियों की जो छुट्टियां रहती हैं, तो आप देखें तो जो नॉर्थ इंडिया रहता है वहाँ बहुत सर्दी होती है और यहाँ साउथ में बिल्कुल नहीं रहती है. तो हमारी जो छुट्टी हम अलग रहती है. लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, पूरा जनवरी का महीना जो है, द मंथ ऑफ जनवरी पूरा क्लोज रहता है, शट डाउन रहता है, वहाँ पूरे स्कूल्स क्लोज रहते हैं. तो हम ये नहीं बोल सकते कि फिर क्यों बंद कर दिए स्कूल को. रूल्स थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कहाँ की कैसी ना मतलब मौसम है या वहाँ की कैसी जरूरियात है, उसके हिसाब से चेंजेस लाने पड़ते हैं. किसी ने मुझसे वो राइट टू प्रॉपर्टी पूछा था. जी मैम, वो मिल गया मैम उसका आंसर. हाँ नहीं, वो आर्टिकल 17 में है, देखिए. जी मैम. वो है, तो उसको हटा के नहीं करे थे. एक्चुअली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स पहले से है ना, उनको हटाया नहीं जाता है, आर्टिकल हटाया नहीं जाता, कुछ चीजें ऐड होती हैं, ठीक है ना, या थोड़ा बहुत चेंज होता है. तो ये जो है ना 17 आर्टिकल 17 में राइट टू प्रॉपर्टी है. जी मैम. जी सर, मैडम बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन दे रहे, तो सर 2 घंटे भी सुनने तैयार है सर. मैडम के बारे में जी सर, मैडम बहुत अच्छा बोले सर. एक्चुअली सर हम लोगों को ऐसे आर्टिकल्स मालूम थे बहुत ऊपर के, लेकिन मैडम 15A 51(1) और ऐसा कुछ बोले ना, अंदर के स्पेसिफिक आर्टिकल्स बोले जो नहीं मालूम थे हम लोगों को. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग पेशेंस से सुने. मैडम चले या श्योर रियली मैडम, इंशाल्लाह आपको मैं भगवान को दुआ करता हूँ मैडम, आप अच्छा तरह से हेल्थ के बारे में और फैमिली के बारे में अच्छा होना चाहिए. आपको फ्यूचर में भी अच्छा पोजीशन में रहना बोल के मैं विश कर रहा हूँ मैडम. अच्छा अंदाजा से आप एक्सप्लेन करें मैडम. कूल, योर presentation is so nice मैम. Using the slides, the different ways and with examples. I wanted to make slide more attractive, animation डाल के, लेकिन I didn't get much time. वो जो पिक्स है ना, वो भी अंदाजा से करेक्ट अंदाजा से लिया. Really on behalf of Diet Vikarabad,
Thank you very much, madam. Yeah, please, trainees, now you can, Sir, shall I say something? yes, ma'am, please. Ma'am, your first word of wait, वो वीडियो ओपन करो मैं, ओपन करो. क्या सर है आप, थोड़ा जैसे आप भी पर्दा में है तो कैसे मैं कब आते हैं बाहर? नहीं सर, वो मस्जिद में था. नो प्रॉब्लम, मैं भी घर पे है खाली, नो प्रॉब्लम, ओपन कर पाए नहीं तो चांस तो दे. ये अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं ना. ऑनलाइन में कौन कैसा है, कहाँ है, क्या बात कर रहे, कैसे तरीके है मालूम होना चाहिए. एटलीस्ट क्लास में है तो हम पूरा देखते, बच्चों से मुंह देख के हम पढ़ा सिखाते पढ़ाते. लेकिन ये कौन बात कर रहे, कैसे है, क्या हो रहा है आप लोगों को. मैं आरिफ, आप ओपन करो आप लोग. अरे मैडम देख ले. सी व्हाट आई ऑब्जर्व द मैडम, शी క్వాలిఫైడ్ సో మెనీ థింగ్స్. సి దట్ ఈస్ నేను గమనించింది ఏంటంటే, the madam not only PhD, she presented 30 papers, she written 5 books, and she presented the sessions, different seminars, different symposiums, different conference levels, and she got so many prizes. So that is you have to learn how she secured. मैडम अड़गाल में ये मड़तुरमा मेरू चपंడి मैडम, आप इतना तक कैसे पढ़ा और इसमें आपको मदद कौन दिया, साथ दिया ना, और पापा मम्मी से दिया ना, आपको बच्चे से कैसे हेल्प करे, आपको ये पूछना चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट इज नथिंग बट आगे कैसे बढ़ना. सर क्या नहीं. यस नाउ कैसे दिख रहे भाई? अरे अल्हम्दुलिल्लाह. खैरियत सर. Sir, ma'am, your first word of explanation when I heard, जब मुझे पता चला कि you are a very knowledgeable person, और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे अंदाज में आप जो एक्सप्लेन करें मैम, बहुत अच्छा लगा. मतलब सेक्शंस क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, ये आप जो है अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करें. सर जाना. तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगा. और कुछ अगर खास तौर पे अगर कुछ और भी कोई चीज छूट गई हो तो आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर दूंगी. कोई अगर कोई ऐसा टर्म्स आ रहा है जो आपको नहीं पता चला, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वहाँ पे मिस हो गए हैं, तो आई डेफिनेटली गो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा टाइम का ख्याल रखना पड़ता है क्लासेस में. ट्रेनिंग्स यार मैडम से गुजारिश करो क्या है, और आगे भी थोड़ा क्लासेस ले बोल के. मैडम ऑलरेडी presented so many lessons in TSAT. I will send the links, all the links to you people. Please watch them and subscribe and give the advice also. You can write the comments also. So that is the empowerment. So खाली एक ही बात सुनना नहीं है माँ, आप लोगों भी थोड़ा सर्च करना, विकिपीडिया में जाके और गूगल सर्च करके व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल हमारा किस तरीके से है, कौन सा बेनिफिट है, इससे हम पूरे लोगों को, आप लोगों भी थोड़ा एजुकेट करना. यस नाज़रीन बात करो जी. यस मैम. मैम सबसे पहले तो हम लोग ये खुशनसीबी है मैम, आप जैसी शख्सियत से हम लोग कभी नाज़रीन कभी वीडियो ऑन करते ना. स्कूल कॉलेज में हम लोग पूरा बुरका निकलते ना చెప్పండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో. ఇప్పుడు ఏముందమ్మా, మీరు ఫ్రీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చూడాలంటే ఈజ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ పీపుల్. ఇంకా మీరు సరే కొంచెం సారీ అంటే ఐ వోంట్ గో ఇన్సైడ్, బట్ కొంచెం सर मैडम भी और सेशंस ले रहे ना सर हम लोगों को, और भी मुलाकात. तो आप पूछो, रिक्वेस्ट करो. सर आरिफ को बोलो. सर आप आरिफ को बोलो सर. भाई बात करो भाई आरिफ. जी सर. अस्सलाम वालेकुम मैम. नो वीडियो विदाउट मास्क नहीं ओपन करो. यस ओपन करो भाई. अरे क्या नाइस, क्या दिख रहा है भाई, माशाल्लाह. सर हम क्या करें बोले तो हमारे घर के बाजू बाउंड्री है, वहाँ पर आके बैठे मैडम की क्लास जो है तो सुकून से सुना, बल्कि पूरी ग्रीनरी है. देखिए अच्छा एनवायरनमेंट है. घर में रहे तो क्या है वो डिस्टर्बेंस हो जा रहा है सर, पूरे जरा रिलेटिव्स आए हुए हैं. हवा आते नहीं है. यस अच्छा है, हम लोगों को भी ग्रीनरी देखने को मौका मिल रहा है ना. एग्जैक्टली मैम, द लाइफ इन विलेज रियली इज वंडरफुल. मौसम और मैम पूछिए, कुछ बोलना चाह रहे थे. जी मैम, सबसे पहले जो है सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपने जो है सो आपका कीमती वक्त हमें अता किए, और आपकी खिदमत और कारनामे सुन के बहुत खुशी हुई मैम, और जो है सो आपकी क्लास भी सुन के बहुत अच्छा लगा.
यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जी जी मैम। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 लोग हैं ऑलरेडी। मैं अभी जो है ना, मैंने औरतों के लिए और जेंट्स मतलब अलग अलग सेशंस रखे हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए और बेसिक इंग्लिश के लिए। स्पोकन में तो जो लोग थोड़ा बहुत बोल लेते हैं उनके लिए है, और जो बेसिक हैं वो जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा इंटरेक्शन की, ज़्यादा बताने की ज़रूरत रहती है, उर्दू मीडियम से हैं या तेलुगु मीडियम से हैं। तो अगर आप लोग चाहें, अगर आपको पता हो, क्योंकि ये मैं मतलब इसमें ज़्यादा मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ सर्विस के नियत से कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं इसमें, ठीक है ना। तो आप जी जी मैम। जी अगर मैम अगर हो सका तो अगर 10 स्टूडेंट आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए दूसरे टाइम पे भी अरेंज कर सकती हूँ, कभी आप लोग फ्री हैं तो। और ख़ास बात ये है कि ये वीकली क्लास है, सिर्फ संडे क्लास रहेगी, सॉरी एक दिन क्लास रहेगी हफ्ते में, और 5 दिन हम असाइनमेंट भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो जो जी मैम। स्पोकन इंग्लिश क्लास है वो 3 महीने का है, और 3 महीने में इंशाल्लाह अच्छा खासा बोलना सीख जाएंगे, मतलब कहीं भी आप जाके आराम से बोल सकते हैं। तो अगर आपकी पहचान में कोई है तो उनको फ़ायदा उठाने दीजिए इस मौके का, आप बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई अपना काम प्रमोट करना चाह रही हूँ, लेकिन इतने कम में इतने अच्छे अंदाज में, और वो भी 25-25 साल पुराने टीचर से बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो ये एक चीज़ है। आप जेंट्स के अलग सेशन चलते हैं हमारे पास, लेडीज़ के अलग चलते हैं, आप देख सकते हैं। तो जी जी कुछ में जी मैम। हाँ, कुछ और फ़ायदा हो जाएगा लोगों का। और जहाँ तक क्लास की बात है, इंशाल्लाह सर जब तक मुझे क्लास देते रहेंगे, जब तक मैं हाजिर रहूँगी। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो उससे रिलेटेड, ये अपने सिलेबस से रिलेटेड, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी सर को दे देती मैं, आप फॉरवर्ड कर देते। आपको कुछ डाउट है तो आप मेल पे पूछ सकते हैं। आप जैसा भी सर जो भी अरेंजमेंट करे, आपके डाउट्स आप हमेशा क्लियर कर सकते हैं। Yes, Ruhi? यस सर। मैम। जी मैम। हेलो। हाँ बोलिए रोही। हाँ जी मैम, हम बहुत अच्छी लगी मैम आपकी क्लास आज की। सोशल दिखी ना मैम ये क्लास, आप पूरे ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोले, पूरे आर्टिकल्स के बारे में बोले, लेकिन ये पूरी सोशल की क्लास थी, लेकिन बिल्कुल भी सोशल दिखी ना मैम। बहुत अच्छा, मजा भी आया, एंजॉय भी हुआ, समझने में भी बहुत अच्छा आया मैम। खुश नसीबी है, आई एम रियली वेरी लकी, हम लोग लकी है मैम आपकी क्लास स्टूडेंट्स सुने, लाइक लेकिन यू। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा ये है कि अगर आपको कहीं भी कुछ कमी महसूस हुई हो, कुछ अगर कोई डाउट्स रह गया हो और जो मैं कवर नहीं कर सकी हूँ अभी, नहीं मैम ऐसा एक ही तो कुछ देखिए, भी एक नहीं ही रहा बात मैम। है कि ये विजन की बात हो रही, ये जी बात मैम। हो रही कि हम मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो विजन क्या था, क्या सोच के बना, उसमें जी एजुकेशनल चीजें क्या क्या डाली गई। तो जब आप आंसर भी लिखते हैं आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिए कि आप एक 2-4 सेंटेंस आप इनिशियल आप फॉर्म करेंगे, बताएंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने क्या क्या डाला इनिशियली, और वो सारी चीजें हमारे, वो विजन था उनका, वो ये चाह रहे थे। उस वक्त उनको नहीं पता था कि कैसे चलेगा ये, लेकिन जी उनका विजन था, उन्होंने ऐसा सोचा था, उन्होंने दूरंदेशी, जो दूर का उन्होंने सोचा था कि इस तरह से हम बच्चों को, इस तरह से औरतों को, इस तरह से जो हमारे देश में जो दूसरे दूसरे तरह के जो हर हर किस्म के रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना, और जो हमारी खुद की नेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस आती रहेंगी तो उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी रहे। ये सारी चीज़ों को उन्होंने पहले से सोच रखा था, और जी सारी चीज़ों को विजन में डाल दिया। तो हमारा बेसिकली हम विजन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से आप इंक्लूड कर दिए तो आपका पूरा हो जाता है, ये आंसर भी पूरा हो जाता, और टॉपिक भी जी कवर हो गया आपका पूरा। जी मैम, बिल्कुल ठीक आपका है, समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। Yeah, Israt, she raised the hand. Israt ji. अस्सलाम वालेकुम मैम। Yeah. वालेकुम सलाम मैम, प्लीज। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्र अदा करती हूँ और आपकी सोच को मेरा सलाम। क्योंकि मैं तो आपकी स्लाइड को तो नहीं देखी क्योंकि मैं बाहर थी। आपकी क्लास को सुनी मैम, मैं पूरी क्लास सुनी शुरू से। एक्चुअली क्या होता मैम, सोशल की क्लास में नींद आती, लेकिन आपकी क्लास में इंटरेस्ट आया मेरे को। अच्छा दिखा, अरे सोशल की क्लास ऐसी भी होती क्या, आज मालूम हुआ, जैसा कि मेरे साथी ने भी कहा, रूही ने,
हाँ सही में भी मैम, बहुत शुक्रिया। और गुजारिश करती हूँ कि आप आगे भी क्लासेस लेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम आपका बहुत। Anyone? Otherwise, we'll close the session. Yes, last or one or two people if you want. Otherwise, see, whenever the speaker is there, you have to interact, and that is your type of exposure. So, Kali Sunna Jana, kya ji? What is learning? Learning is nothing but interaction between the teacher and taught. So, whenever you have to pose the question, interact with the other person, then only that takes place learning. अदरवाइज आप लोगों खाली सुनना जाना, हाँ, खाना पीना सोना, ये क्या है जी? इतना मौका मिल रहा है आप लोगों को, हाँ? हमारा रेगुलर कॉलेज है तो ऐसा मिलते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा लोगों को कितना बिजी है मैडम। अफशान अंजुम प्लीज अम्मा, या अफशान। एक बात मैडम, टेल यू वन थिंग प्लीज मैडम, या प्लीज। अगर हमारी ये रेगुलर क्लास होती तो क्या होता? मैं क्लास में जाती, सारे स्टूडेंट बैठे रहते बेंच पे, सबकी शक्ल मुझे नजर आती और सब बोलते, सब हंसते बोलते। अब ये हमारी मजबूरी है कि पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ये सारी बीमारी कोरोना वायरस की वजह से, कि हम लोग जो है हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा उतना ज्यादा क्लास मजेदार भी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी। और ये है कि सोशल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आप बोलते रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। जहाँ चुप बैठे, आप ऐसे चेयर पे बैठ गए आराम से, तो आप सो जाएंगे। तो इंटरेक्टिव बनाइए क्लास, ये सबसे बड़ी बात है। बढ़िया। यस, your another group, your Martha, yes, Afshan Anjum, please, you can now. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वेरी गुड इवनिंग। जो आप पीडीएफ बनाए उसमें आर्टिकल्स की जो वजाहत दी है, जो अच्छे अंदाज में हमको समझ में भी आ गया और वो रिवीजन भी हो गया मैडम के कौन सा आर्टिकल किसके लिए इस्तेमाल होता, बल्कि जज़ाकल्लाह खैर मैडम, शुक्रिया। Assalamu alaikum, madam. Can you explain once again, madam, right of minorities to establish and administer educational institutions? The other day I have gone through your TSET video and I asked my lecturer Ramachari sir to contact you with regard to interacting with our Urdu medium trainees. Really, it's a honor for us. Yeah, हमें ऑडियो प्रॉब्लम है। House with our students. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. I think there is some break. Now it will go. Okay, audio madam. problem. Yes. Okay, sir. Yeah, madam. Something problem है ऑडियो, या इंटरेस्टेड हैं और हम देखेंगे अगर आपको आपके क्लासेस से क्लैश ना हो तो वैसे टाइम पे रख सकते हैं आपके लिए क्लास। जी मैम, बिल्कुल देख लेंगे, जब आप फ्री रहते ना वो टाइम पे हम अरेंज कर देंगे। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। हाँ मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, फिर मिलेंगे मैम अगर आप क्लास लेंगे तो। क्लास भी लेंगे और आप भी इंशाल्लाह आएंगे, और जितना हो सकेगा मेरे से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। और फिर वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जहाँ भी डाउट हो प्लीज आप लोग भी बताइए, ताकि जो है अगर कुछ मिसिंग हो तो वो पूरा कर दूं मैं इंशाल्लाह। लास्ट ऑफ स्मॉल वर्ड मैडम, आप जो कूल से प्रेजेंटेशन करें ना मैडम, दैट इज आई लाइक। थैंक यू वेरी मच, या बीइंग विद अस। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट मैम, थैंक यू।